Hey kids, good afternoon. Welcome to this session organisms and population and आज हम solve करने वाले हैं graphical questions with a micro quiz. ठीक है? So first we'll do some theory part, everyone, right? And then we'll solve some important questions which already have come in many of the exams like NEET, JIPMER, AIMS. Okay? So I have clubbed all the questions for you and let's just start the session. ठीक है? So how are you all? पहले तो ये बता दो chat box पे. Are you all good? Are you all fine? Super excited. So NEET 2020 is near and LMSR is here. Okay, so let's just start organisms and population with your favorite DG ma'am. But before that, let me just thank Sumaya ma'am for the amazing slides. So Sumaya ma'am, thank you so much. Okay, she really needs appreciation, guys. So one heart for Sumaya ma'am. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. Join the Vedantu NEET official group and how to join the Telegram group. This is the link. We need official and you get a chance to win Vedantu t-shirts. Right. Moving ahead, guys, my dear kids. बच्चा लोग Vedantu has got Users Choice App Award 2019 में. So please, why to not download the app then? So ऐसे ऐप को तो आप भी डाउनलोड कर लो यार. चलो, so आगे बढ़ते हैं. So new batch already started from 10th of August and the features of the new batch is here. You will get live sessions by best teachers. One of those is me, okay, and so many teachers in our channel. Then you have to analyze assignments honge, previous year questions, papers, mock tests and recorded sessions. Also you can get tips and tricks how to solve a question. There will be rank booster quizzes so that your performance could be boosted up, right? And the comprehensive test. So chalo, bholna mat, use the code DKCC. First log in to vdnt.in/neetcc and then click on enroll, apply the coupon code DKCC and price देख लो कितनी कम हो गई है प्राइस बच्चे लोग. ओके, the price can you see 1990. NEET 2020 के बच्चे जो डर रहे हैं, don't be afraid. Okay, don't be afraid, just join the crash course and you will nail it. So click on enroll now, click on I have a coupon code and apply the coupon DKCC. Chalo, so long term subscription pro batches, right? So link also available in description. Visit vdnt.in/YT Pro. And these are the features: live interactive classes, test series and analysis, assignments and notes. Okay? And how to avail the pro subscription. This is for students aspiring for NEET 2021, NEET 2022. So 11th standard, 12th standard, according to which grade you are in right now. चलो, सो इसमें 1 month, 3 month, 6 month, 12 month हर एक सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा माय डियर किड्स. यू कैन गो फॉर 12 months ऑल्सो, यू कैन गो फॉर 6 months, बट इफ यू सी जो बेटर होगा वो आपके लिए 12 months का होगा. ओनली 2252 पर मंथ में all the 3 subjects, the physics, chemistry and biology. Physics में हर एक चैप्टर, केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर एंड बायोलॉजी ऑफ कोर्स बॉटनी बाय मी एंड zoology बाय गरिमा मैम. ओके, सो कंप्लीट करिकुलम. तो इसमें दो चीजें आई विल टेल यू. टेस्ट सीरीज, awesome test series everyone, ठीक है, and the learning material. even you will get regular performance reports. ठीक है, पढ़ाया तो obviously जाएगा ही और कभी कभी आपके माइक्रो कोर्सेज भी होंगे. don't forget that. okay, so in micro courses we are going to cover one chapter at a time, right? So 2 live classes for each chapter. Like if you have missed any chapter and if you felt that you have not understood right while the regular session was going on, then you can go for the micro courses. And not to forget, there could be crash course also. तो उसके लिए आपको अलग से पे करने की ना जरूरत नहीं है. So for that long term batches, for the pro subscription, if you want a discount, you can apply the code DK Pro and 4769 का आपको discount मिल जाएगा. And trust me, my dear kids, it's going to be amazing when you join the long term batch. ठीक है, चलो. So today's calendar is this. 21st August है आज. क्लास 11th and 12th नीट बैच 2020 के लिए आज का जो हमारा कैलेंडर है, you already had 9 AM and 11 AM का आपका नीट का 2020 last minute super revision for reproductive health and with the mentee again. Now again you had a physics class, right, with Gaurav sirs. Now Diksha ma'am is here with LMSR, organisms and population, how to solve graphical questions. ठीक है, and then 7 PM 9 PM you're going to have chemistry classes. Cool. चलो, so my dear kids, so you remember we started with organisms and populations, and in that I told you first thing that when you just open your textbook, when you just see the page, so 2 things: father of Indian ecology Ramdev Mishra, ठीक है, और उसके बाद एक सीक्वेंस होता है सेल, टिश्यूज,
then organ system, then organism, right? Then population, then community, then ecosystem, and so on, right? So now we all organisms basically we are affected by the outer environment, we all know. So external level जैसे जैसे हाई होगा, internal level का जो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी है वो भी चेंज होता रहेगा. So this graph is very important. मतलब इस ग्राफ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है एवरीवन. सो दिस इज वेरी इजी. सो इफ यू सी द स्ट्रेट लाइन कर्व conformers, so what it shows, the moment the external temperature is increasing, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा. You can see that. So conformers are basically organisms those who are not able to regulate their body temperature, cannot regulate their body temperature. I'm writing it as BP, right? So it means their internal temperature will keep on changing. So for example, if I talk about the cold-blooded animals, okay, so what happens in cold-blooded animals? Anyone in the chat box? And can you give any examples? क्या examples हैं cold-blooded animals के? I'm sure you might be writing so many examples like fishes हैं. So yes, my dear kids, you all are right. ठीक है? So ये अपना regulate नहीं कर पाते हैं temperature. Okay, and what is the other name of cold-blooded animals? Anyone? There's specific name for cold-blooded animals, and that is what? Homeotherms or poikilotherms in the chat box. Okay, so conformers हो गया, regulators अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. So conformers का दूसरा नाम होता है, if I say that a cold-blooded animal is a conformer, then those cold-blooded animals बच्चा लोग is basically a पाव किलो थम ना, पॉय किलो थम. Okay, clear? Chalo. So let's just move ahead with the next thing, that is a regulator. Now as the name says regulator, and you can see the y-axis, you can see the x-axis. जैसे जैसे external level बढ़ रहा है, क्या internal level में कोई change हुआ? No. The internal level, the internal temperature, the internal osmotic concentration. See here, everyone, at exactly same point. ये आपका y-axis है, right? Clear? This is your y-axis, this is your x-axis, and x and y-axis में if you see on the y-axis internal level एक ही point पे अटका हुआ है, अटकोफाई हो गया है, and it is a straight line with respect to the x-axis. With respect to the x-axis, it's parallel. So regulators can regulate body temperature, that is BT. This is very easy. For example, human beings, birds, and some lower invertebrates also. And what about partial regulators? Partial regulators मतलब है starting में उन्होंने regulate वो नहीं कर पाए थे. Can you see that? Partial regulator is having a straight line. ठीक है, एक बार इसको हटा देते so that you can see. Yeah, see that partial regulator वाली line देखो बच्चा लोग. See the line, this line. So first straight line है, first they were not able to regulate, but after some time they got adjusted and then they are able to regulate. So those are known as partial regulators. Okay, so इसमें बहुत ही beautiful example I'm going to give you. For example, there is hot summer, temperature is very high. I can afford AC, and this is how I regulated my body temperature. So I am a regulator, I can afford that much amount. Conformers, someone cannot afford AC and they cannot regulate their body temperature. They will be just waiting for that day that when they can buy AC, और उस गर्मी में झुलसती गर्मी में मर जाएंगे. ठीक है, so those are conformers. Clear? Now coming to partial regulators. अब मैंने खरीद ली वर्लपूल की AC, ठीक है, और दूसरे इंसान ने कोई और AC खरीदी थी. तो पहले तो वो बेचारा क्या हुआ कि रेगुलेट नहीं कर पा रहा था. स्ट्रेट लाइन में जा रही है ग्राफ देखो, पहले रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, फिर उसको लगा कि चलो एक एसी खरीद लेते हैं, तो उसने वर्लपूल की खरीदी नहीं एसी, उसने कोई और एसी खरीदी, थोड़ी सी सस्ती वाली एसी खरीदी. बट इवन दिस पार्शियल रेगुलेटर्स, आई एम टेलिंग यू माय डियर किड्स, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो एसी अफोर्ड कर पाए, बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट इंक्रीज द रेंज, है ना. उसका एक बजट होगा, उसको इंक्रीज नहीं कर सकता. दीक्षा मैम ने वर्लपूल की एसी लिए तो मैं भी लूंगा, नहीं हो सकता. या फिर आप में से किसी ने वर्लपूल के लिए तो दीक्षा मैम वर्लपूल की ले पाएगी, दीक्षा मैम का बजट नहीं है. दीक्षा मैम क्या करेगी, फिर दीक्षा मैम भी कंफर्मर बन जाएगी. मतलब छोड़ो एसी वैसे छोड़ो यार, हटाओ, कोई बात नहीं, हम नहीं रेगुलेट कर पाएंगे बॉडी टेम्परेचर. आई गेस दैट वाज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन कंफर्मर्स, रेगुलेटर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स. तो ये ग्राफ आ सकता है एंड दे विल आस्क यू ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है. सो रिमेंबर द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन फॉर कंफर्मर्स,
parallel to x-axis for regulators and one straight line and then parallel for partial regulators. ठीक है बच्चा लोग समझ में आया? All of you understood? Response to organism में abiotic factors से हमारा जो response होता है light, temperature, soil. ठीक है? So that is very very important. Now let's just start reading the theory part. So can you all see regulate? Word regulator. हाँ जी. So some organisms are able to maintain homeostasis. What is homeostasis? It's a process of maintaining constant internal temperature. Clear? So this process is known as homeostasis, जहाँ पे हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं माय डियर किड्स, उस प्रोसेस को हम होम्योस्टासिस बोलते हैं. सो कुछ ऑर्गेनिज्म, इतने से ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टासिस बाय सम फिजियोलॉजिकल मीन्स एंड समटाइम्स बिहेवियरल ऑल्सो. कुछ फिजियोलॉजिकल होगा, कुछ अंदर से होगा और कुछ हम अपने बिहेवियर की वजह से करेंगे. तो जिससे क्या होगा, दो चीजें होंगी वेरी इंपॉर्टेंट. We can maintain constant body temperature, we can maintain constant osmotic concentration. It means two things are there when we are saying homeostasis. Thermoregulation, write it down everyone and try to understand, and osmoregulation. ये दो चीजें हैं जिससे हम अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, तो थर्मोरेगुलेशन हो गया. एंड इफ यू आर मेंटेनिंग द कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. All the birds, all the mammals and कुछ lower vertebrates and invertebrate भी, they are capable of such regulation. Which regulation I am talking about? Thermo and osmo. Clear हुआ concept? And why we are mammals? Basically अगर हम mammals की बात करें, so mammals when you study animal kingdom are very much developed. So if I talk about mammals, तो कहीं ना कहीं उनकी ability जो होती है to maintain a constant body temperature, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तभी आप लोग सहारा डेजर्ट में भी देख सकते हो एंड यू कैन सी मैमल्स इन अंटार्कटिका आल्सो. क्लियर एवरीवन? सो रेगुलेटर्स में तीन चीजें जो आपको याद रखनी है. फर्स्ट पॉइंट, होम्योस्टासिस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर. क्लियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स? अंडरस्टूड? ठीक है. सो सेकंड पॉइंट, हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन इट. कांस्टेंट इंटरनल क्या मेंटेन करना है? So constant internal temperature, that is thermoregulation, and constant osmotic concentration, that is osmoregulation. ठीक है. And third point क्या है? Any idea? Third point है इनका graph. So the graph is parallel to x-axis. Just ये याद रख लो. External level at the x-axis, internal level at the y-axis, and 3 points are the take-home message for everyone. Moving ahead, the mechanisms used by most mammals. Now the concept is, what kind of a mechanism our body is using? Physiological mechanism. तो जब winter होगा, this paragraph का मैम पूरा जिस दे रही है आपको, जब winter होगा, our body shivering is a mechanism, so that heat is increased. The body will release heat, the body will produce heat. Okay, so you can see the mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. We maintain a constant body temperature. 37 degree Celsius है सबका आजकल, तो in corona we are checking also 37 degree Celsius. So when I reached my hometown West Bengal, and I landed on the airport, and then I was basically checked by this screening वाला process. Still after that I went under quarantine for 14 days. ठीक है. 37 डिग्री की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई बच्चों? ऐसा तो कितना इम्पोर्टेंट है यार 37 डिग्री, राइट? तो अब समझ में आ रहा है कि 37 डिग्री का अगर 39 हुआ तो बेटा समझ लो कि मतलब क्या होगा, ले जाएंगे, है ना? सो इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस. सो हाउ आवर बॉडी इज मेंटेनिंग दैट? जब गर्मी होती है, फॉर एग्जांपल नाउ इट्स समर, सो व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर, तो गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होगा. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो हम स्वेटिंग करते हैं, राइट? वी स्वेट प्रोफ्यूजली. जैसे ही स्वेटिंग होगा, सो यू ऑल नो इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, राइट? सो व्हेनेवर द वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, दे टेक all the energy, the heat energy, and the surface become cool. And this way the evaporative cooling, similar to what happens with a desert cooler in operation,
इट इज ब्रिंगिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। इमेजिन करो अगर बाहर 42 डिग्री सेल्सियस है और आपकी बॉडी भी अगर 42 पे चली जाएगी, अयो तो क्या होगा मेरे बच्चों, बताओ। सो व्हाट डू यू थिंक, दिस process is efficient or not? Yes ma'am, it's very efficient, right? So अगर हम विंटर की बात करें, आई सेड विंटर में टेम्परेचर बहुत कम है बट हमें 37 डिग्री तक लाना है उसको। सो इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर वी स्टार्ट टू शिवर, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature, clear? बट प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, प्लांट्स के पास ना शिवरिंग मैकेनिज्म है, प्लांट्स के पास ना कूलिंग मैकेनिज्म। कूलिंग तो है बच्चा, कूलिंग तो है, which cooling mechanism plant has? Anyone who can tell me? डीजी मैम वेट कर रही है। yes, most of you might be saying मैम ट्रांसपिरेशन, and here you go, you are correct। ठीक है, तो रेगुलेटर सबको समझ में आया। अब आते हैं कन्फर्मर्स पे। सो क्या कन्फर्मर्स रेगुलेट कर पाते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑन कन्फर्मर्स, नो मैम, कांट रेगुलेट। सो द क्वेश्चन इज कि जब रेगुलेटर्स इतने खुश हैं यार, मतलब टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, इंटरनल टेम्परेचर, तो कन्फर्मर्स क्यों पीछे रह गए? वाई कन्फर्मर्स पीछे रह गए? बिकॉज दिस थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन इज अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। जैसे एसी के लिए पैसे चाहिए तो हर कोई तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। सो एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये याद रखना, there are very few organisms who are regulators, most of the organisms are conformers, ठीक है, क्योंकि their body temperature is changing with the ambient temperature। जो उनका body temperature उनके surrounding temperature के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर 42 हुआ, द बॉडी टेम्परेचर 42, बाहर का 52, बॉडी का 52, ठीक है। सो एक्वाटिक एनिमल्स, फिश, शार्क्स, हैग फिशेस, सो मेनी ऑफ देम, तो उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है इट इज चेंजिंग विद दैट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे जैसे डिसॉल्व्ड वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे उनकी बॉडी का कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। even thermoregulation, even osmoregulation, दोनों change होगा। they cannot maintain it at a constant temperature and a constant pH। these animals and plants are simply conformers, वो conform कर रहे हैं, right? considering the benefits of a constant internal environment। so we all know what is the benefit, right? being a human being, I am a human being, you are a human being, सबको पता है कि constant एक टेम्परेचर का फायदा क्या है। what do you think is the benefit of constant temperature? anyone in the chat box, कांस्टेंट टेम्परेचर का मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द बेनिफिट? एनीवन इन द चैट बॉक्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी राइटिंग कि मैम एनर्जी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंजाइम्स वर्क करेंगे। वेरी गुड। सो व्हेन आई एम सेइंग थर्मोरेगुलेशन, व्हेन आई एम सेइंग ऑस्मोरेगुलेशन, द एंजाइम्स प्रीटी वेल वर्क फाइन, ठीक है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स काम नहीं करेंगी, दे हैव जस्ट ट्राइड, यू नो, they have just adapted themselves like that कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, but still they have to survive। now the question is why these conformers had not evolved? as I said, ठीक है, how many of people can really afford an air conditioner? कितने लोग एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं? not everyone, है ना, हर एक इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, डीजी मैम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, है ना। so many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months। तो एयर कंडीशन नहीं लाते हैं, सिंपली स्वेटिंग होती है। तो थर्मो रेगुलेशन भी अगर करना है तो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है गाइस। whether it is thermoregulation, whether it is osmoregulation, it is very 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 much expensive, clear? okay, तो आगे चलते हैं। this is particularly true for small animals, so it's very important। surface area and heat relation is very important for you to understand। small surface area होगा, छोटे animals होंगे तो उनका large surface area, जैसे large surface area होगा, surface area is proportional to heat, you might be knowing in physics, है ना। तो surface area is proportional to heat, directly proportional। जैसे surface area ज़्यादा होगा heat का gain और loss भी ज़्यादा होगा, ठीक है। so here comes your Allen's rule, याद आया। सो एनिमल्स जो होते हैं कोल्डर एनवायरनमेंट में, कोल्डर रीजन्स में, छोटे छोटे कान होंगे, छोटे छोटे पैर होंगे, सो दैट व्हाट विल हैपन, दे विल ट्राई टू मेक इट अ लार्ज सरफेस है ताकि हीट का जो लॉस हो वो जल्दी हो बट हीट गेन भी बहुत जल्दी हो जाए, राइट। सो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड
and they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. But यहाँ पे एक problem है, smaller animals polar regions पे हम नहीं देखेंगे ज़्यादा छोटे छोटे, ठीक है? क्यों? क्योंकि छोटे एनिमल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हीट का गेन और लॉस बहुत ज़्यादा होगा एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दैट मच एनर्जी, right, to generate the same amount of heat. So during the course of evolution, the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration and this is something a conformer. अब अगर stressful conditions अभी भी है, मतलब ठंडी जा ही नहीं रही है, ठीक है, लोकलाइज्ड है या फिर थोड़े से टाइम के लिए है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल कन्फर्मर्स की बात कर लो या पार्शियल रेगुलेटर्स की बात करो, रेगुलेटर्स को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. सो when there is no other option, the organism still has two other options. What are those? या तो वो माइग्रेट कर जाएगा, ठंडी तो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, गर्मी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, है ना, तो वो माइग्रेट करेगा दूसरे जगह में. फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे घर पे एसी नहीं था, मैं दूसरे घर में चली गई एसी के लिए, है ना. इट वॉज अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन देयर वाज नो टीवी, राइट, तो लोग दूसरों के घर में जाते थे ना रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए. इट वॉज बेसिकली अ माइग्रेशन, अ स्मॉल माइग्रेशन, छोटू माइग्रेशन. सो ये बर्ड्स के साथ होता है, यू माइट बी नोइंग एवरी विंटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कियोलाडो नेशनल पार्क इन राजस्थान से, ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से एंड ठंडी जब वहां पे होती है तो राजस्थान में आ जाते हैं, राजस्थान में गर्मी होती है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ माइग्रेशन. तो वो क्यों टेंशन ले यार, ठीक है, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ी वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में मर जाएंगे नहीं, ओके. तो दिस इज वन अल्टरनेटिव टू द कन्फर्मर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स. दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, सस्पेंड करना, अपने आप को छुपा देना, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज अ डोरमेंसी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्पोर्स बना लेना, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स, प्लांट्स, ठीक है. हायर प्लांट्स में सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स serve as a means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. Plant भी कर रहा है बच्चों. When the conditions are not favorable, plant कैसे कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को completely reduce कर देगा. मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एक चीज याद रखना, H2O बिल्कुल कम हो जाएगा. The seed, the spore, they will try to lose as much water as they could, and then they undergo the state of dormancy. So that was all about the regulators, conformers, migration and suspension. I hope that is clear to everyone. और एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि conformers का जो ग्राफ होगा, straight line, right? It's a straight line graph because they're not able to regulate. ओके, सो मूविंग एड, सस्पेंड हो गया. सस्पेंड में दो चीजें यू हैव टू रिमेंबर, द एडेप्टेशंस फॉर सस्पेंशन लाइक हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, समर स्लीप. क्लियर? एंड डायापॉज which is a zooplanktonic process in lakes and ponds. They enter a stage of suspended development. बिल्कुल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शून्य, ओके, एंड वाटर इज वेरी वेरी लेस, ओके. चलो, सो आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में. सो गाइज आई विल टेल यू दिस इन वेरी सिंपल वर्ड्स. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में जो जो चीजें आपको पढ़नी है, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अ पॉपुलेशन. So population is a group of organism. For example, if I am saying a human population, so species will be same. Very important thing. So when I say population, एक ही species होनी चाहिए, मतलब human being का human population, dogs के लिए dog का population. So an individual organism is not a population, right? एक organism population नहीं होता, बहुत सारे organism मिलकर बनाते हैं population. And coming to the concept, ठीक है, coming to the concept. So population में बहुत सारी चीजें आएंगी. Birth rate, remember this, कितने लोगों का जन्म हुआ, ठीक है. Death rate, रेट की बात हो रही है, राइट, रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सेक्स रेशियो, हाउ मेनी ऑफ देम आर फीमेल, हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल, ठीक है. सो पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा. एंड इंडिविजुअल में बर्थ एंड डेथ, मतलब एक इंसान बर्थ हो रही है, एक इंसान की डेथ हो रही है, वो एक इंसान की बात हो रही है. बट अगर पॉपुलेशन की बात करें बच्चे, सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स, रेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ की बात कर रहे हैं. वी आर सीइंग पर कैपिटा, लाइक पर थाउजेंड हाउ मेनी बर्थ्स, per thousand how many deaths, that is a rate. Okay, so the rate hence are expressed as change in numbers, increase or decrease with respect to members of the population. So when I am saying the rates, कितना change हुआ है, वो increase हुए हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं with respect to the members of the population. For example, यहाँ पे बहुत ही beautiful example दिया है. Let me just explain you this example. एक pond है, उसमें बहुत सारे लोटस हैं. ठीक है, इमेजिन करो लास्ट ईयर देयर वर 40 प्लांट्स, 40 लोटस प्लांट्स. ठीक है, तो मैंने 20 का 40 कर दिया, राइट. एंड थ्रू रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन हुआ, ऑब्वियसली दीस आर प्लांट्स, दे विल रिप्रोड्यूस, एंड यू गॉट 8 न्यू प्लांट्स. सो हाउ मेनी न्यू प्लांट्स गॉट एडेड? सो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? Initial size was 40 and you have added 8 new plants. Total population 48. Very good. बच्चे लोग 48 है. ठीक है, अगर birth rate calculate करना है, rate calculate करना है, so you will say मैम 8 plants add हुए और initially कितना था? 40. So 8 by 40 is 2 4s are 8, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 5 are 20, and I guess 0.2. So 0.2 is the birth rate. This is how you calculate the birth rate. तो कितने लोगों ने जन्म लिया एंड उसकी करंट, मतलब जो प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन थी वो कितनी थी. ठीक है, करंट पॉपुलेशन नहीं लेंगे, करंट पॉपुलेशन में हम ऐड कर रहे हैं उसको. वी विल जस्ट टेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स born with respect to divided by the number of individuals last year, okay, or the last data. Understood? That is how you calculate the birth rate, and same way you will calculate the death rate. Now coming to the human population, the graph which is very very important is this. ये है आपका एज पिरामिड ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए. सो इन ह्यूमन पॉपुलेशन यू विल हैव प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ऑल ऑफ यू. रिप्रोडक्टिव भी होगा, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्यूबर्टी नहीं पहुंचे, कुछ ऐसे होंगे दे हैव रीच्ड प्यूबर्टी, एंड कुछ ऐसे हैं जो प्यूबर्टी के बाद. सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव 3 एज पिरामिड्स एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई से एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, so it means the pre-reproductive का बार दिख रहा है आपको? Can you all see the bar? This whole कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? It's very long. So when the pre-reproductive phase is very high, that kind of a population is known as expanding. And अब आप बोलोगे कि मैम ये तो नीचे नीचे जा रहा है क्योंकि मतलब ये डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज गाइस, because there could be death also, right? But when I say a expanding population, ये triangular है पूरा. So expanding population is a triangle. Remember that triangular pyramid where the pre-reproductive phase is very very high. Pre-reproductive number बहुत ज्यादा होगा. जिन जो प्यूबर्टी पे नहीं पहुंचे हैं वो ऑर्गेनिजम्स, उन बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. ठीक है, अंडरस्टूड. तो हम दो हमारे दो नहीं है, अब हम दो हमारे 12 वाला कॉन्सेप्ट अभी भी कहीं ना कहीं चलता है, एंड दैट इज हाउ इट इज लीडिंग टू expanding population. Coming to a stable population, stable में अगर आप देखो प्री रिप्रोडक्टिव जो है यानी कि ग्रे वाला, लेट मी जस्ट क्लियर दिस. देखो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इट्स वेरी इजी. तो देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव था, उसके बाद रिप्रोडक्टिव है, एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव. सो कैन यू सी द प्री रिप्रोडक्टिव और कहीं ना कहीं जो आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो ऑलमोस्ट सेम लगता है. देयर इज नो दैट मच डिफरेंस प्री एंड पोस्ट में. सो दैट काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज स्टेबल पॉपुलेशन. ठीक है, इट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन. क्लियर? स्टेबल पॉपुलेशन इज बेल शेप्ड, बेल जैसा. ठीक है, कमिंग टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में व्हाट यू सी, प्री रिप्रोडक्टिव देखो कितना कम है, रिप्रोडक्टिव इज वेरी वेरी हाई. ठीक है, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव बिल्कुल कम हो गया. बट व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ डिक्लाइनिंग, बिकॉज गाइस प्री रिप्रोडक्टिव इतने कम इंडिविजुअल्स हैं. आई विल शो यू अगेन. प्री रिप्रोडक्टिव का आप वो देखो, आप प्री रिप्रोडक्टिव का बार देखो, देखो कितने कम इंडिविजुअल हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव में है. तो जब एक बार ये मर जाएंगे पोस्ट वाले तो इनको रिप्लेस कौन करेगा, राइट? तो इट मीन्स पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है.
उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं है। अंडरस्टूड? ये जितने भी बच्चे थे उन्होंने सबने, यू कैन सी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले गए। फिर यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट। पोस्ट में इफ यू सी बहुत कम बच गए लोग, है ना। दैट इज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं अर्न शिफ्ट। सो वी हैव थ्री, वन इज एक्सपैंडिंग, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, स्टेबल में प्री एंड पोस्ट बहुत ज्यादा है, डिक्लाइनिंग में रिप्रोडक्टिव इज मोर, ओके, बट देयर इज नो वन टू रिप्लेस द ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स आर वेरी लेस इन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज पिरामिड्स, राइट। सो कमिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट्स वेरी इजी। सो पॉपुलेशन की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो पॉपुलेशन में ग्रोथ तो होगा ही भाई, है ना, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ तो होगा ही। साइज तो बिल्कुल पॉपुलेशन का स्टैटिक नहीं है, साइज वेरी करेगा। नाउ हाउ विल यू कंसीडर द साइज? ठीक है, सो एक होगा नैटलिटी, एक होगा मोर्टेलिटी, एक होगा इमिग्रेशन, दूसरा होगा एमिग्रेशन। सो लेट जस्ट कम डायरेक्टली। सो नैटलिटी इज बर्थ रेट, mortality is death rate, immigration is कितने इंडिविजुअल्स आए उस जगह पे, इमिग्रेट हुए, और कितनी इंडिविजुअल्स गॉन। सो दैट इज हाउ इट विल बी रीचिंग टू अ पॉइंट, दैट इज पॉपुलेशन की डेंसिटी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे सारे फैक्टर्स को देखते हुए। ठीक है, सो नैटलिटी, नंबर ऑफ बर्थ्स, एक टाइम पीरियड में कितना हुआ पॉपुलेशन में, जिसने इनिशियल फॉर एग्जांपल 100 डीजी मैम, 100 डीजी मैम रह रही थी एक जगह पे, ठीक है, ओके, एंड उसमें हमने और 10 डीजी मैम को ऐड कर दिया, दैट इज द नैटलिटी। 100 डीजी मैम थी, 10 डीजी मैम मर गए, तो मोर्टेलिटी। ठीक है, अब 100 डीजी मैम थी, हमने कहीं और से किसी और को बुला लिया, किसको बुलाए, एवरीवन, किसी को भी, एनी ऑफ माय किड्स, 10 किड्स गॉट एडेड, राइट। 100 डीजी मैम थे, उसमें से 10 चले गए, ठीक है, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, डेथ रेट, right, birth rate. So can you see that? So beautifully we have understood it, right? तो इसका हमने फॉर्मूला बना दिया। So if n is the population density at time t, then its density at time t, मतलब अगर एक टाइम पे फॉर एग्जाम्पल 1993 में, ठीक है, ईयर्स में काउंट कर सकते हो, मिनट्स में काउंट कर सकते हो, आवर्स में काउंट कर सकते हो, सेकंड्स में काउंट कर सकते हो, टाइम इज समथिंग विच यू कैन कैलकुलेट इन दिस सेंस, राइट। तो एक लाइक 1 आवर में पॉपुलेशन था कुछ 100, सो 1 + 1 आवर यानी कि 2 आवर, एंड दैट इज व्हाट इज t + 1। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इनिशियली एन टी कितना था, 100, एट टाइम t, एट द फर्स्ट आवर, पॉपुलेशन साइज 100, हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यू पॉपुलेशन साइज? यू विल ऐड दिस पैरामीटर्स कि कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग आए, और कितने लोगों की डेथ हुई, और कितने लोग चले गए, एंड यू विल जस्ट ऐड बोथ द प्लस प्लस फैक्टर्स एंड देन यू विल सब्सट्रैक्ट इट। ठीक है, so this is the important इक्वेशन। ठीक है, तो अब आते हैं पॉपुलेशन के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। पिरामिड बात कर लिया हमने, फॉर्मूला बात कर लिया, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम डायरेक्टली इस ग्राफ पे आएंगे गाइस। तो देखो माय डियर किड्स, देयर आर टू सिचुएशंस, या तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए, है ना, जैसा कि डार्विन सर ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन, रिसोर्सेज एकदम एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और इंडिविजुअल्स बहुत कम है, इंडिविजुअल्स लाइक मिनिमम है। सो डू यू थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द रिसोर्सेज फॉर एनी इंडिविजुअल? क्या लगता है आपको? जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इंडिविजुअल बहुत कम है, तो सबको बहुत अच्छे से चांस मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नो लिमिट। सो देन वी कॉल दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ एज एक्सपोनेंशियल। सो पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व व्हेन द रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। ठीक है, मतलब बाहर का एबायोटिक फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, नॉट अफेक्टिंग द इंडिविजुअल, प्लॉट बिल्कुल बढ़ा ही जा रहा है। ज्योमेट्रिक फैशन में यू माइट हैव स्टडीड अबाउट जीपी एपी इन मैथ्स, ज्योमेट्रिक 2⁻n, क्लियर। एंड जब रिस्पॉन्सेज लिमिटिंग हो गए, ग्रोथ को लिमिट करेंगे, प्लॉट हो जाएगा लॉजिस्टिक। तो गाइज आई विल टेल यू द आइडियल सिचुएशन क्या होगा। अब रिसोर्सेज जो है एनवायरमेंट में वो एकदम मैक्सिमम नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लैब जहां पे आप खुद से कुछ भी दे रहे हो, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, फंगस को, यू कैन गिव देम, सो दे शो एक्सपोनेंशियल कर्व, बैक्टीरिया शो एक्सपोनेंशियल कर्व, नो नो वरीज, बैक्टीरिया को कोई टेंशन नहीं है कि सरकार मुझे खाना दो, तो सरकार ने खाना दे दिया, ठीक है,
है ना, अरे ओ सांबा खाना दीजिए तो खाना दे दिया। बट इन नेचुरल एनवायरनमेंट डू वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? नहीं, क्योंकि भगदड़ मची हुई है गाइस, रेस लगी हुई है, ना सिर्फ पढ़ाई की रेस है, यहाँ पे खाने की भी रेस है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू कम टू लॉजिस्टिक ग्रोथ यू see one term that is K, very important, known as carrying capacity, है ना। C, what is carrying capacity? हर एक environment की अपनी एक maximum size होगी। Every environment will have its maximum population size. अगर उससे बढ़ जाता तो हम overpopulated country बोल देते हैं, overpopulated ecosystem बोल देते हैं, overpopulated biome बोल देते हैं। So that is very very important. So can you see this logistic growth, if you see this, it's reaching the carrying capacity, that's it, एकदम बढ़ नहीं रहा है, इनिशियली धीरे 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 बढ़ा, उसके बाद फाइनली कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल इज व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, लॉजिस्टिक इज व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। Exponential does not have any carrying capacity concept. Logistic have carrying capacity concept. Exponential grows randomly, but logistic has a limit. Okay, it will just reach the carrying capacity of the nature. Exponential is a J-shaped graph. Very important. J-shaped. ठीक है, लॉजिस्टिक कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, एनीवन इन द चैट बॉक्स, इट्स सिग्मोइड। So don't go anywhere, this is just completed and we're going to do some questions, ठीक है। So एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। So when it comes to exponential, so exponential का फॉर्मूला होगा dn by dt, you are taking a instantaneous population rate, so birth minus death into the basic size कितना था उसका, ठीक है, and b minus d को r बोलेंगे। तो when intrinsic rate, r मतलब intrinsic rate of natural increase, अगर ये पॉजिटिव है, when r is positive, so what do you think, population increase हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, anyone? When R is positive, what do you think? Population increasing or decreasing? Anyone? Okay, so that's pretty easy. That R increase होगा, positive होगा, तो इसका मतलब कि population increase हो रहा है। R negative है, population decrease हो रहा है। R में कोई चीज नहीं, population stable है। अब देखो नॉर्वे रैट का R देखो, और फ्लोर बीटल का R देखो, तो किसका R ज्यादा है? इसका। इसका मतलब ये ज्यादा मोर ग्रोइंग पॉपुलेशन है बीटल्स का। So I hope that you all understood. Even for human population in India, आप अभी का देखोगे तो 1.8 कुछ पहुंच गया R. So you can understand how much is the R value, and R value matters a lot. ठीक है, so इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ है वेयर एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, बट हम इंट्रिंसिक रेट को जरूर देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कितने लोग की जन्म हुए, कितने लोग मरेंगे, मरेंगे जरूर, है ना, एक बार तो कोई ना कोई मरना है, नथिंग इज इमॉर्टल इन लाइफ। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल, है ना। सो इसको इन दिस टर्म आल्सो यू कैन एक्सप्लेन इट, nt is equals to n0 ert, okay, e the base of natural log 2.71 के टर्म में भी यू कैन राइट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जे शेप्ड कर्व है, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। Cool. So now you can see logistic growth. We have discussed. देखो carrying capacity आ गया. This limit is nature's carrying capacity for that species in that habitat. ठीक है. So no population, कोई भी population, ये है non-ideal situation. Ideal situation exponential है ना. Logistic growth real है, practical है, everyone. So you can see the formula. dn by dt is equals to rn k minus n by k. So I hope that is clear to everyone. N is equals to population density at time t, R is equals to intrinsic rate of natural increase, and K is equals to carrying capacity. Clear? चलो. So ये है आपका last topic of the chapter. This is very very important. You can expect a lot of questions from this part. So mutualism, जैसे कि अगर आप population की बात कर रहे हो तो population में अलग अलग organisms होंगे, ठीक है। सो कोई किसी का खाना होगा, कोई किसी का खाना होगा, राइट। कोई किसी को खा जाएगा और उसको कोई और खा सकता है, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को और बड़ी मछली। So this way we have some interactions. When both of them are benefited, mutualism. किसी को फायदा नहीं हुआ, फालतू का कंपटीशन हो गया। एक को बेनिफिट हुआ और दूसरे को नहीं हुआ, मतलब प्रेडेटर आया, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया,
तो छोटी मछली तो गई हाथ से, गए। देन पैरासिटिज्म में एक को फायदा दूसरे को नुकसान। फॉर एग्जाम्पल होस्ट इज कमिंग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एनी स्पीशीज विच लीव्स इन आवर इंटेस्टाइन, जो हमारे बॉडी से खाना लेता है, फॉर एग्जाम्पल लाइस, ठीक है, एक पैरासाइट है, राइट, खाना ले रहा है, कुछ नहीं दे रहा, वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है हमें। कमेंसनिज्म में एक को बेनिफिट है दूसरे को कुछ नुकसान नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, वो वहां से प्रोटीन लेते रहते हैं अपना स्किन से, और एनिमल्स को बड़ा मजा आता है, एनिमल्स को कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। एमेंसनिज्म में एक को नुकसान है दूसरा न्यूट्रल है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स इन द चैप्टर। Clear? So shall we go for a quiz now, everyone? So let's just start the quiz round. And the first question: which of the following is not a reason why population growth declines as population size approaches the carrying capacity? इनमें से कौन सा रीजन नहीं है एक पॉपुलेशन ग्रोथ की डिक्लाइन होने का, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज अप्रोच कर रही है कैरिंग कैपेसिटी को। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है तो कौन सा रीजन इज नॉट सुटेबल? इज इट ए क्लाइमेट बिकम्स अनफेवरेबल, बी कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज इंक्रीजेस, सी predation rate increases, d disease rate increases? Anyone in the chat box, everyone, come on. So what is the answer for this question? A, क्लाइमेट बिकम्स अनफेवरेबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपटीशन में आप पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन करने का सोच सकते हो, प्रेडेशन हुआ तो लोग मर रहे हैं, डिजीज हुआ तो लोग मर रहे हैं, कंपटीशन में भी हो सकता है लोग मर सकते हैं, ठीक है, बट क्लाइमेट अनफेवरेबल में अडेप्टेशन वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है, दे हैव ऑप्शंस, राइट। ओके, सो मूविंग अहेड, इन एन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी है उसके पास, रिमेंबर दैट कैरिंग कैपेसिटी जहां आया, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ लॉजिस्टिक ग्रोथ। Thousands of eggs and hundreds of tadpoles. Remember this. क्या हुआ? बहुत सारे egg आए, बहुत सारे tadpole आए, and they are produced by a single pair of frogs. About how many offsprings will live to reproduce the next year? Everyone, question समझो कि बहुत सारे thousands of eggs produce हो गए, thousand मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, और उन thousand के thousand ने मतलब उसमें thousand में से 100 tadpoles आ रहे हैं, single pair of frog, a pair of frog giving thousands of eggs but 100 of tadpoles. How many offsprings will live to reproduce the next year? मतलब आप क्या सोचो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने ऑफस्प्रिंग्स नेक्स्ट ईयर तक रहने चाहिए? सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म मिलने चाहिए टू रिप्लेस द फ्रॉग्स, है ना, 2 ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, मेल फीमेल, ठीक है, सो दैट वो अपने आप को आगे बढ़ाए, रिप्रोड्यूस करे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 एंड दैट इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर? सो आंसर समझो 2 क्यों है, बिकॉज टू रिप्लेस द फ्रॉग, जो मम्मी पापा थे उनको रिप्लेस करना है, मैक्सिमम यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इज 2। अगर आप एक्सपोनेंशियल की बात करोगे तो फिर मोर देन 100 ले लो, 100 ऑफस्प्रिंग्स की जरूरत है, बट अभी 2 ऑफस्प्रिंग्स आर इनफ टू रिप्लेस द फ्रॉग। I hope that is clear to everyone. अब ये बहुत easy है. Graphical questions are very important for this chapter. For a population that is stable in size, the following age distribution indicates that. What is the age distribution indicating? As a population जो stable है, remember that. See that this ये देखो age के साथ क्या हो रहा है? Everyone, A, B, C, D. Which one is the correct answer? Population birth and death rates are high. Population birth and death rates are low. Population birth rate is low but death rate high है, और population birth rate high है but death rate low है। Any idea? तो यहाँ पे आप bars देखो, जब question होगा आप नंबर देखो, तो birth बहुत ज्यादा है, right? तो क्या डेथ भी ज्यादा है? हाँ, बिकॉज अगर आप देखो तो कितना ज्यादा डिक्रीज हो गया, कितने सो लेस इंडिविजुअल्स, सच लेस इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट, एवरीवन, कितने कम इंडिविजुअल्स मरे हैं, मतलब बचे हैं, बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। सो द पॉपुलेशन बर्थ एंड डेथ रेट्स आर हाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हो गया ये क्वेश्चन? मजा आया? कैसे सॉल्व कर रहे हो आप क्वेश्चन को? आ रहा है समझ में? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, मार्क द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। 1 क्या है? What is 1? What is 2? What is 3? I am giving you chance. A, B, C, D is the option. अब देखो क्वेश्चन को, it's your textbook question, textbook का पिक्चर है ये। You might have studied the mean annual precipitation x axis पे, y axis पे temperature, ठीक है? According to the rainfall, according to the temperature, we have different types of, biomes, forest. So A
पक्का बी सी डी कौन सा है? सो लेट जस्ट सी द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ए। पहले है ट्रॉपिकल, फिर है टेम्परेट एंड फिर है कॉनिफरस। ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिकल। ठीक है, फिर आपका सेकेंड वाला है टेम्परेट एंड थर्ड इज कॉनिफरस। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। क्या पता उन्होंने 1 2 3 हटा दिया, आपको जस्ट ये दे दिया ग्रासलैंड, डेजर्ट। सो यू शुड नो कि कौन से रेंज में, कौन से एनुअल प्रेसिपिटेशन के रेंज में कौन सा आ रहा है। यू कैन जस्ट रिमेंबर द शेप्स आल्सो, बट आई वुड सजेस्ट टू रिमेंबर द प्रेसिपिटेशन एंड द एनुअल टेम्परेचर का रेंज याद रखो। देखो अगर ट्रॉपिकल को देखोगे तो बिल्कुल रेनफॉल देखो। अगर आप टेम्परेट को देखोगे, सेकेंड वाला जो शेडेड पोर्शन है, this one, see the tropical, temperate, see the rainfall, right, see the rainfall. So this way you can just understand कि tropical के बाद आएगा temperate, और temperate के बाद can you see, ये देखो ये थोड़ा इधर भी आ गया, थोड़ी सी रेनफॉल में भी ये फॉरेस्ट ग्रो करने लगता है, राइट। ओके, टू सर्वाइव, टू सस्टेन टेम्परेचर एंड रेनफॉल विल बी रिक्वायर्ड, नो डाउट। इनिशियल आप चेक कर सकते हो, क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, this is a very easy question. Again, refer the graph below which shows the changes in population size over time. Which part of this graph refers to the exponential growth phase of a new population? Refer the graph below which shows the changes in population size over time. Which part of this graph refers to the exponential growth phase of a new population? 1 2 3 तीनों को देखो, इसमें से कौन सा आपको लगता है कि एक्सपोनेंशियल है? Anyone? 1 5 2 3। टाइम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, डोंट फॉरगेट एवरीवन, कम ऑन। अ वेरी इजी क्वेश्चन, याद करो लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ याद करो। कुछ एक्स जैसा आपने देखा था यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो द करेक्ट आंसर, शैल आई टेल? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज क्यों है? बिकॉज ये देखो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कैरिंग कैपेसिटी तक चल रहा था, उसके बाद कैन यू सी द 2, वो बढ़ रहा है गाइस। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर रहा है। सो क्रॉसिंग द कैरिंग कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, 7th क्वेश्चन। इन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया आपने बच्चों, ठीक है, आपने स्पीशीज लिए, 2 स्पीशीज प्रोटिस्टा के, पैरामीशियम के। ठीक है, तो ये है आपका स्पीशीज 1 प्रोटिस्टा का, स्पीशीज 2 प्रोटिस्टा का, और इनको हमने अकेले ग्रो किया, दूसरे स्पीशीज के साथ भी ग्रो किया। ठीक है, तो यू कैन सी जब अकेले किया और दूसरे स्पीशीज के साथ ग्रो किया तो क्या सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो यू कैन सी स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 स्पीशीज 2 स्पीशीज 1। ये स्पीशीज 2 स्पीशीज 1 किसका है? ये दूसरे स्पीशीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये अलोन वाला है प्रोटिस्टा का। सो इंटरप्रिटेशन क्या है ग्राफ का? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब टाइम के साथ पॉपुलेशन चेक करो, टाइम के साथ पॉपुलेशन चेक करो। स्पीशीज 2 के साथ जब हमने ग्रो किया, ठीक है, और अलोन जब ग्रो किया, तो जब अलोन आपने ग्रो किया तो यू कैन सी दिस, स्पीशीज 2 के साथ ग्रो किया तो यू कैन सी द पॉपुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया, राइट। अगर स्पीशीज 1 के साथ आप देख रहे हो यू कैन सी दिस, अकेले ग्रो कर रहे हो तो थोड़ा और बढ़ गया। बट इफ यू कंपेयर प्रोटिस्टा का स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 तो आपको दिखेगा क्या? So both species are affected by interspecific competition, but species 2 कम affected है। species 2 of the paramecium वो कम affected है। species 2 को आप देखो alone लो या species 1 के साथ, वो ज्यादा affected नहीं है। The correct answer for this question is दोनों ही species affected है। ठीक है, interspecific competition है, resources के लिए competition होगा, but species 2 कम affected है। Can you see the species 2? Can you see species 1? तो with species 2 देखो क्या है, with species 1 देखो क्या है। ठीक है, species 2 is less affected. Clear? Okay, moving ahead. The following graph represents the organismic response to certain environmental condition. तो how the organism is going to respond to environmental condition, ये ग्राफ हमने अभी पढ़ा था। Who can tell me what is A? ये जो straight line ग्राफ है, is it conformer or regulator? Yes, it's a conformer. ठीक है, ए हो गया कन्फर्मर। दूसरा लाइन क्या डिपिक्ट करता है? कम ऑन जल्दी जल्दी इन द चैट बॉक्स एवरीवन। दूसरा लाइन विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेगुलेटर्स। ठीक है,
How does this organism differ from each other with reference to homeostasis? Very easy. Conformers cannot regulate homeostasis, yes or no? And they can regulate homeostasis. Easy. Mention the category to which human being belong. Human being यानी हम आप कौन सी कैटेगरी को आएंगे, कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स? आई गेस मेरे प्यारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे मैम रेगुलेटर्स हैं, एंड यू आर वेरी करेक्ट डियर किड्स, इट्स रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए है कन्फर्मर, बी है रेगुलेटर, दोनों का डिफरेंस हो गया, ह्यूमंस आर रेगुलेटर्स। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी है, तीन रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ एज पिरामिड। देखो जो जो हमने पढ़ा बेस्ड ऑन दैट वी हैव द क्वेश्चंस एंड दे आर द नीट क्वेश्चंस, एम्स क्वेश्चंस, जिपमर क्वेश्चंस, डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोफाइल्स है। हु कैन टेल मी व्हाट इज सी, हु कैन टेल मी व्हाट इज बी, हु कैन टेल मी व्हाट इज ए? ठीक है, तो ए हो गया आपका एक्सपैंडिंग, बी इज एवरीवन डिक्लाइनिंग, राइट है ना? या मैम गलत है या सही है? मैम तो गलत है बेटा, तो आपने सही नहीं किया, मैम को कर दिया, चलो ठीक है। दिस इज अ स्टेबल पॉपुलेशन, दिस इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, सो मेंशन द गिवन टू द थ्री बाइंड्स ऑफ एज प्रोफाइल, हो गया। ए बी सी क्या है आपको पता चल गया, विच ऑफ दैट इज आइडियल? आइडियल तो स्टेबल पॉपुलेशन ही होगी, जो कि हो नहीं सकता, है ना? सो हाउ डू सच एज प्रोफाइल हेल्प्स पॉलिसी मेकिंग कंसर्न अबाउट योर ग्रोइंग पॉपुलेशन? तो लेट्स जस्ट सी। तो यंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यंग मतलब वही आपकी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, जहाँ पे यंग बहुत ज्यादा होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ज्यादा होगा। स्टेबल पॉपुलेशन आइडियल है। एज प्रोफाइल से फायदा क्या होता है? ये जो एज पिरामिड से, ये कंट्री का एज पिरामिड क्या बताता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, कैसा है? एंड वी मेक एन आइडिया फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ सो दैट दे मेक फ्यूचर प्लान्स, कि रोकने के लिए फिर कैसी मुहिम लगानी पड़ेगी। ठीक है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशंस दैट अ स्पीशीज विल ऑक्यूपाई इन द एब्सेंस ऑफ कंपिटिटर्स। फॉर एग्जांपल गाइस, देयर आर नो कंपिटिटर्स, है ना? कोई कंपिटिटर्स नहीं है, तो फिर कोई भी कंडीशंस हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? अगर कंपटीशन नहीं है तो वो स्पीशीज का कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन क्या होगा, वो स्पीशीज क्या ऑक्युपाई करेगा? ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश इज बेसिकली द रोल प्लेड बाय दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, व्हेन देयर इज नो कंपटीशन, तो उसका अपना जो रोल होगा वो प्ले करेगा, एंड दैट इज द फंडामेंटल निश। सो आई होप यू ऑल लाइक द क्वेश्चंस। सो अगर आपको मजा आया चैनल में, यू फेल्ट दैट these questions you have never solved and you felt that the explanation was very awesome, ठीक है, मजा आया, so please subscribe to our channel, we need made easy। so organisms and population हो गया है खत्म। ठीक है, LMSR है ना, हो गया है। लाइटनिंग डील ले लेना 1999 में vdnt.in/needcc, यूज कूपन कोड DKCC and DK Pro for the long term subscription। so and yes, don't forget to join the telegram group, इससे आपको बहुत हेल्प होगा गाइस, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट द PDF फॉर द चैप्टर्स, कौन सी क्लास है, क्या हो रहा है वेदांतु में, सब आपको ऑफिशियल ग्रुप में पता चलेगा। even the replays you can see anything, and users choice app award to our company वेदांतु को मिला है। सो प्लीज डाउनलोड द फ्री ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। थोड़ी सी MB जाएगी ना, तो गाइज 1 लाइक फॉर डीजे मैम, 1 शेयर, 1 सब्सक्राइब। आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर सो वेल। आप देखो, पूरा शांति से देखो, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड शबा खैर।